So on with the selfish giant. Let us come. Let us see what is happening in the selfish giant story. Can you all hear this? See the screen? Yes, ma'am. हाँ? स्वार्थी होना अच्छा बात है कि खराब बात है? अच्छा होना है. कोई स्वार्थी है तो क्या है? अच्छा है. Bad habit. Selfish is always bad. वो एक्सेप्शन कैसे? Now you saw that in the earlier we saw that in the story. The winter was continuing in the selfish giant's garden. Where's your copy and pen and please, start to write. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, as you saw, in the selfish giant's garden, it was winter. It was a long winter. And one day, वो जायंट था, सेल्फिश जायंट था, वो भी वरीड था. वो भी इस ठंड से ऊब गया था. He was fed up of this long winter. And he was wondering, वो सोच रहा था, why winter has stayed so long? Why am I having such a long winter? So he was sad, he was frustrated. Because of this painful winter. तो ये विंटर क्या था? बहुत ही पेनफुल था, बहुत लंबा खिंचा और बहुत ज़्यादा ठंड. कहीं धूप का नामो निशान नहीं. ओले, फ्रॉस्ट, हेल, चिल, snow, winter winds. So nothing was comfortable. So the selfish giant became very sad. One day, he was awake and lying in the bed. वो जाग करके भी वो लेटा हुआ था बेड पे. Because वो उठ के भी क्या करता? He could not go out because it was very cold outside. So he was inside the bed. So one morning what happened? What did he see? He heard a linnet. Linnet is a small bird. L-I-N-E-T, linnet. If you think this is a fun class, you be out of the class. L-I-N-E-T, linnet. एक छोटी सी चिड़िया जो कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं. He heard music. Music की आवाज़ सुनाई दी. At first he thought कि किंग जो राजा थे, किंग थे, the king's musicians is passing by. राजघरानों में म्यूजिशियंस हुआ करते. तो सोचा कि किंग का म्यूजिशियन पास कर रहा होगा, इसलिए गाने की आवाज़ आ रही थी. इट हैड बीन लॉन्ग, मतलब बहुत दिनों से ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी थी उसको. तो क्या बोला मैम? राजघराने म्यूजिक को क्या बोला?
उसको म्यूजिक की आवाज आई. He heard music, so he thought that the king's musicians are passing. So one morning the giant was lying awake, जागा हुआ था, लेटा हुआ था, when he heard some lovely music. What kind of music it was? Lovely music. हाँ. It was so long since he had heard a bird sing in his garden. कई दिनों से वो, it was so long, बहुत दिन पहले सुना था किसी bird का singing. And that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. और बहुत दिनों के बाद वो आवाज़ सुनाई पड़ी, तो वो सोचा था दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड. फिर वो क्या देखा? Then he noticed that the north wind, he noticed कि नॉर्थ विंड जो तेज हवा चल रही थी वो थमी हुई है. That the north wind and hail were quiet. पिछले क्लास में बताया गया था, शांत थे. जो दिन भर बरसते रहते थे वो शांत थे, क्वाइट हो गए थे, और ठंडी हवा भी नहीं चल रही थी और कोई आवाज हेल की भी नहीं आ रही थी. And most importantly, the air was filled with a sweet perfume. और वातावरण में एक खुशबू का एक महक, एक फ्रेग्रेंस ऑफ फूलों की जो खुशबू होती है, परफ्यूम. He felt that. Questions आता है. What did the giant notice? That the north wind and the air was filled with a sweet perfume. So what did he notice? He noticed something which was the repercussion of something which has happened. वो क्या था जिसके वजह से बर्ड्स भी अंदर आ गए और फूल भी खिले और पूरे वातावरण में फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स आ गया. क्या हुआ था? Then he saw the most wonderful sight. उसके बाद उसने कुछ सुना. देखिए यहाँ पर 3 साउंड आ रहा है. सुना, फील किया और देखा. 3 एक्टिविटी हुआ ना. पहले क्या उसने फील क्या किया? सुना क्या पे? He heard the bird singing. He heard. Then he felt that there was no noise. The north wind and the hail were quiet. This he felt. And then he saw. What did he saw? What did he see? He saw one of the most wonderful sights. Sight मतलब होता है scenes. दृश्य. वो दृश्य क्या था? Through a little hole. जो उन्होंने दीवार जो इरेक्ट किया था, that wall around the garden, उसमें एक छोटा सा होल हो गया था और उस होल से बच्चे रेन करके गार्डन में आ रहे थे. That through a hole in the wall, the children had crept मतलब होता है रेन करके अंदर आ गए थे. And they were sitting on the branches of the tree. और बच्चे अंदर आ गए थे, एक एक करके अंदर आ गए थे और एक एक पेड़ पे बच्चे जाकर के आराम से बैठे हुए थे. और जिस पेड़ पर भी वो बैठे हुए थे वो सब पेड़ हरे भरे हो गए थे, फूलों से लद गए थे. So what sight did he see? He saw that the children had come inside through a hole and they were sitting on each branch of the tree.
the trees were so glad to have the children back. The trees were so glad, मतलब पेड़ भी खुश हो गए बच्चों को वापस पा करके. That they covered themselves with blossoms. फूलों से वो अपने आप को कवर कर लिए, पेड़ पत्तों से, फूलों से. And the birds twittered happily. और उन पे जो birds थे, birds were singing. तो पेड़ पे सबसे पहले बच्चे अंदर आए, पेड़ पे चढ़े, बच्चों के स्पर्श से पेड़ भी हरा भरा हो गया, और बच्चों के आगमन से बर्ड्स भी आ गए. तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है कि बच्चे नहीं थे तो वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ जिंदगी नहीं थी. बच्चों के आते ही लाइफ हैड रिटर्न टू द गार्डन विद द कमिंग ऑफ द चिल्ड्रन. ट्विटर मतलब बच्चों का, सॉरी, पंछियों का चहचहाना. पंछियों का कहाँ पड़ा है? लेकिन what did the giant see at the corner of the garden? कॉर्नर में जायंट ने क्या देखा? बहुत ठंड थी और एक छोटा सा बच्चा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था. हर जगह, everywhere it was greenery, everywhere the children were happily playing, singing, the birds were singing, but in a corner of the garden, दूर कहीं कोने में एक बच्चा इतना छोटा था कि वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था, जिसके वजह से वो रो रहा था. जायंट ने क्या देखा? वो अपने रूम में भी है, नीचे नहीं आया, वो अपने रूम से देख रहा है, सब तरफ देखा, फिर नज़र पड़ी कॉर्नर में एक छोटा बच्चा रो रहा है और वो ऊपर चढ़ने के लिए परेशान है. इतना टाइनी है, इतना छोटा है दैट वो चढ़ नहीं पा रहा. एंड पेड़ भी नीचे झुक करके उसको अपने पास बुलाना चाह रहा, बट पेड़ तो पेड़. एंड वहाँ पे अभी भी बर्फ थी, वहाँ पे अभी भी पेड़, ग्रीनरी नहीं था, वहाँ अभी भी बच्चे का स्पर्श नहीं हुआ था पेड़ पे. तो पेड़ भी इंतज़ार में था कि बच्चे के स्पर्श से वो सब कुछ उसमें आ जाएगा, जो कि वो वेट कर रहा था. तो ये आगे आप जानेंगे कि छोटा बच्चा कौन था. छोटा बच्चा था बेबी क्राइस्ट. कौन था वो? आपने ईसा मसीह का नाम तो सुना ही होगा. तो वो बेबी क्राइस्ट थे, जो कि इनको सुधारने के लिए बच्चे के रूप में आकर के और इनको समझाने के लिए भी आए थे कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपको नहीं करना चाहिए. Only in one corner it was still winter. In it was a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches. He was so tiny, he was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all around it. और वो चारों तरफ पेड़ के घूम रहा था और बहुत ही ज़्यादा रो रहा था. He was crying bitterly. He was crying bitterly. कोई बहुत ज़्यादा रोता है तो क्या, कैसे बोलेंगे? He was crying bitterly. आप वोकैबुलरी नहीं लिखिएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा. आप ऐसे देख रहे हैं. Literature is a class where you will learn English. You are not noting down anything. आपका पेन नहीं चलते देखते मुझे टेंशन हो जाती है कि आप कुछ पढ़ ही नहीं पाइएगा, अपना लिख पाइएगा. तो जिस तरीके से आपको हम पढ़ा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उसी तरीके से आप एग्ज़ाम भी दें. और अगर आपका लर्निंग कुछ नहीं होता है तो फिर मेरा क्लास लेना बेकार. एक एक्सप्रेशन है, ही वॉज क्राइंग बिटरली, मतलब बहुत ज़्यादा रो रहा था.
अभी हमने एक न्यूज़ देखा, रीट का एग्ज़ाम था और एक लड़की थी जो वीडियो वायरल कर दिया उन लोगों ने कि वो लेट से आई थी और दरवाज़ा वो लोग गेट खोल नहीं रहे थे और वो कितना रो रही थी वो, एंड दिस गर्ल वॉज क्राइंग बिटरली। तो ये एक्सप्रेशन जो लिटरेचर में है वो कहीं भी यूज हो सकता है। और लिटरेचर पढ़ने वालों की इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है, जैसा कि आप देख भी रहे। पढ़िएगा, वोकैबुलरी करिएगा, कनेक्ट कीजिएगा। मैंने कैसे कनेक्ट किया? क्राइंग बिटरली, मुझे याद आ गया उस वीडियो का, दैट गर्ल वॉज क्राइंग बिटरली। Now the question is, why was the little child crying bitterly? Because he could not able to climb that tree and Because it was not able to reach the branches of the tree as it was very small. This is the most important part of the story. When the question is, how did the selfish giant convert into a kind giant? ये मेजर क्वेश्चन आता है, 25 मार्क्स का रहता है। How did the giant convert into a kind giant? The giant's heart melted, मतलब उसका दिल, as he looked out, और वो अपने आप को बोलता है, how selfish I have been, he said. इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे आप? लिखना आपको है, मुझे नहीं लिखना है, मुझे बस बता देना है। Tell me. Tell me. इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे? He said that how selfish his heart had been. Yes. The giant's heart melted when he saw that the little child was crying in the corner of the garden where it was still winter. And then he realized it was still winter because the child was not able to reach the tree. And when he saw all these things, when he saw that the little child was crying, his heart melted. He felt bad. And he told himself that how selfish he has been. He realizes his mistake, yes. Communication skills जितना आप बोलिएगा, जितना लिखिएगा, उतना आप अच्छा होगा। How selfish he has been, or how selfish he Had been. had been. How selfish he had been. Past tense की बात हो रही है। Now I know. अब वो रियलाइज कर रहा है, अब मुझे पता चला कि स्प्रिंग क्यों नहीं आई, कि वसंत ऋतु क्यों नहीं आई, और मेरे गार्डन में फूल क्यों नहीं खिले, मेरे गार्डन में विंटर क्यों इतना लंबा रहा। सो नाउ आई रियलाइज, नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। और फिर वो क्या करता है, वो क्या डिसाइड करता है? I will put that poor little boy on top of the tree. उसको हाथ से पेड़ पर चढ़ा। और वो सोच रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा और उस बच्चे को पेड़ पे बिठा दूंगा। And then I will knock down the wall. 3 चीज़ वो डिसाइड करता है। I will go down and place that boy on the tree. Secondly, I will break the wall and tell the children to come back again. And tell them that my garden will be the children's playground forever and ever. What? Because and my garden shall be the children's playground forever and ever. वहाँ पे shall ही होगा कि will होगा? Shall ही होगा।
निश्चय दिखा रहा है इसलिए हाँ, it shall be his garden, the children's garden. You cannot point on Oscar Wilde's writing. He was a good राइटर को ही आप क्वेश्चन कर लड़ गया उसको प्लीज बी इन योर लिमिट्स. और फिर यू सी दैट द फोटोग्राफ द पेंटिंग ऑफ द सेल्फिश जायंट, और वो ही इज हैप्पी, his heart has been made न्यू लव फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार उसको प्यार का एहसास होता है जब उस छोटे से बच्चे ने उसको किस करता है. उसको द लिटिल चाइल्ड हु इज द क्राइस्ट, बेबी क्राइस्ट, वो उनको थैंक्स करके और उसको किस करता है. तो फर्स्ट टाइम द जायंट न्यू लव. ये सारे क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा लॉन्ग आंसर में. और फिर वो क्या करता है? His heart melted. And he crept downstairs. Crept मतलब धीरे से वो नीचे उतरता है. Crept मतलब धीरे से, रेंग करके नहीं उतरा है. Crept का वो मतलब भी होता है, crept का ये भी मतलब होता है चुपके से, दबे पांव. वो चुपचाप से नीचे उतरा ताकि कोई उसको देखे नहीं, कोई उसका आने का सब सुने नहीं, और वो धीरे से नीचे उतरता है. crept downstairs and opened the front door quite softly. यहाँ पर softly भी दिया रहा है, crept भी दिया रहा है, मतलब कि धीरे से वो बिना कोई आवाज़ के वो नीचे उतरता है ताकि बच्चे डरे नहीं उसको देख करके. वो चुपके से नीचे उतरता है. and went out into the garden, और वो गार्डन में प्रवेश कर जाता है. but यहाँ पर क्या हुआ? but when the children saw him, जब बच्चे देखे तो फिर इतना डर गए. they were so frightened. frightened का मतलब होता है डर जाना. they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. जैसे ही बच्चे वापस निकले बाहर, गार्डन में फिर से विंटर हो गया. Okay, that's it for today.